Hello all, welcome back to Made Legally. As the title suggests, today in this class we'll be dealing with the doctrines and maxims which are given under your Transfer of Property Act. This lecture is very important for your prelim exam. As you know, Chhattisgarh examination and your Rajasthan HP का आपका mains is now approaching. So it's just around the corner जब ये exams का notification आ जाए and you will be going ahead with the examination. This lecture is very important. Why? Because this is something which is beyond the Bare Act. These doctrines and maxims have not been specifically stated in the Bare Act, but it plays a very important role if we see the past year papers, not regarding only RGS or Chhattisgarh, but regarding any of these states. For every state, if you are planning to go ahead, this series is very important because this is something which is not been given in the Bare Act. What is given is something the provisions. But these are things which have been already asked in your past year questions, and there are chances that these will be asked. Out of 5 questions from the TPA Act, there is at least 1 to 2 questions regarding the doctrines or the maxims. This is a short lecture. This will not be a long video, but a very short 15 to 20 minutes video whereby I will be dealing with the doctrines, the landmark cases, if any, regarding that particular doctrine or that particular provision, and maxims. So make sure you have the Bare Act and a pen with you so that you write it in the Bare Act itself. Don't write in a paper, don't write in in your registers. Rather, write in the Bare Act. Make sure you write a lot in your Bare Act. Never leave like कि भाई Bare Act को मार्क नहीं करना है. नहीं, Bare Act में जितना आप लिखेंगे ना उतना ही ज़्यादा आपकी नॉलेज एनहांस होगी. वाई? बिकॉज Bare Act इज़ द एंड थिंग जो कि आप सुबह शाम कभी ना कभी उसको पढ़ते ही पढ़ते हैं. तो अगर उसमें ही चीज़ें लिखी होंगी, केसेस लिखे होंगे 1 लाइन के फॉर्म में, आपके इंपॉर्टेंट मैगजिम्स या डॉक्ट्रिन्स लिखी होंगी रिगार्डिंग दी आपके सेक्शन नंबर के आसपास ही, तो हमेशा याद रहेगा. गोइंग अहेड विद द फर्स्ट डॉक्ट्रिन या फर्स्ट सेक्शन जो कि बात करें वो है सेक्शन 7 जो कि बात करता है नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट की. आपने बहुत जगह ये हम टीपीए में पढ़ते हैं, हम ये अपना टॉट में पढ़ते हैं, हम यही चीज़ आपके सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ते हैं. तो नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट का मतलब होता है नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल दैन ही हिमसेल्फ हैज़. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सेक्शन 7 किस चीज़ से डील करता है हमें ये जानना पड़ेगा. जस्ट टू रिमेंबर दिस मैगजिम. तो सेक्शन 7 डील्स विद द कॉम्पिटेंसी ऑफ द पर्सन हु इज ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी. So it says that every person who is either entitled to transfer or has some authority to transfer some property is a person competent to transfer. Similarly, section 7 बात करता है nemo dat quod non habet की. That is not given. You need to write in the Bare Act itself. जिसके पास better title है वही वो property को पास कर पाएगा. मैं किसी और की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रही हूँ, दैट इज नॉट अ वैलिड ट्रांसफर. वाई? बिकॉज आई डोंट हैव अ टाइटल अपॉन दैट प्रॉपर्टी. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिम. मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट डॉक्ट्रिन, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस. दिस इज गिवन अंडर योर सेक्शन 18. अब सेक्शन 18 किस चीज से डील करता है? सेक्शन 18 डील करता है ट्रांसफर फॉर परपेचुटी फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल. मतलब ट्रांसफर कोई बेनिफिट पब्लिक एट लार्ज के बेनिफिट के लिए ट्रांसफर हो रहा हो. तो आपको पता है चैरिटेबल ट्रांसफर हो गए, रिलीजियस बेनिफिट्स के लिए ट्रांसफर हो जाते हैं, या कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई भी ट्रांसफर होता है वो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए नहीं होता है. सेक्शन 18 इज अ रूल विच इज अगेंस्ट द रूल ऑफ परपेचुटी. क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसफर होता है वो परपेचुटी मतलब अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, इनमेमोरियल टाइम पीरियड के लिए ट्रांसफर होते हैं. For that, section 18 के अंदर, other than this doctrine of Cyprus, there is this maxim which talks about solus populi suprema lex, which says that the welfare of the people is the supreme law. Why? Because the transfers given under section 18 deals with public transfers, for charitable, religious transfer, for the benefit of the interest of the public at large transfers, and that is why this maxim is very important. आपको पता ही होगा कि जिस तरीके से मैंने पास्ट ईयर में क्वेश्चंस देखे हैं वहाँ पर ऐसा आता है कि डॉक्ट्रिन्स लिखी होंगी आपकी, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस हो गया, आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन हो गया, एंड उसके बगल में सेक्शन नंबर्स लिखे होंगे. यू नीड टू मैच द करेक्ट डॉक्ट्रिन विद द सेक्शन नंबर, एंड दैट इज वाई यू नीड टू रिमेंबर ऑल द डॉक्ट्रिन्स विच इज गिवन अंडर योर TPA Act. Moving ahead with the next doctrine, that is doctrine of acceleration. It is given under section 27. Section 27 deals with the conditional transfer
to the person whenever a prior interest or the prior disposition fails. So there is a conditional transfer on the basis जब prior, जैसे मान लेते हैं A ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की B को और ये कहा कि अगर B की डेथ हो गई ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ मी, दैट इज ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ A, तब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी C को. तो यहाँ पर कंडीशनल ट्रांसफर हो रहा है C को कि अगर पहला वाला ट्रांसफर जो हुआ वो फेल हो जाएगा तब हम तुमको देंगे, वरना तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी. दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन मतलब बढ़ाना. आप गाड़ी चलाते ही हैं, आप एक्सेलरेट करते हैं, जितना एक्सेलरेट करेंगे उतनी गाड़ी आगे तेज भागती है. तो यहाँ पर कहा जा रहा है इफ अ प्रायर इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी फेल्स, अगर पहला कोई इंटरेस्ट फेल हो जाता है, द सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट एक्सेलरेट्स. सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट तभी इन मोशन आएगा जब पहला इंटरेस्ट फेल हो जाएगा. शॉर्ट टर्म्स याद रखिएगा, हमेशा याद रहेगा आपको. फिर नेक्स्ट डॉक्ट्रिन इज डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन विच इज गिवन अंडर सेक्शन 35. आपको पता ही है सेक्शन 35 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि बात करता है इलेक्शन से. आप मैं जनरली बताऊं, इलेक्शन आप जाते हैं वोट देने इलेक्शन में, तो वहां पर आप चूज करते हैं ना अमंग द डिफरेंट पार्टीज यू हैव, अमंग द डिफरेंट ऑप्शंस यू हैव, यू नीड टू चूज अमंग वन, है ना. ऐसा नहीं कर सकते कि आप सबको चूज करेंगे. सिमिलरली सेक्शन 35 डील्स करता है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन से, जहां पर देयर इज दिस पर्सन हु इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, हु इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी बट इज ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर टू द अदर पर्सन फॉर कंसिडरेशन. तो यहाँ पर देयर इज दिस इंडिविजुअल हु इज नॉट द ओनर of the property is transferring but he is transferring somebody else's property for consideration. मतलब पैसे के लिए. ग्रेटिट्यूड ट्रांसफर नहीं हो रहा कि मैंने किसी की प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, मैंने जिसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी उससे मैंने पैसे भी लिए, और अब जब मैंने पैसे लिए वही पैसा मैं अपने पास ना रख के मैं वही पैसा जो ओनर है उनको दे रही हूँ. Now over here the owner has to elect between two things. क्या इलेक्ट कर सकते हैं वो? या तो वो पैसा रख ले कि ओके फाइन आई विल कीप द मनी और जो भी आपने ट्रांसफर किया है वो वैलिड हो गया, या फिर वो कहे कि नहीं आप पैसा वापस लो, मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस दो. तो ही कैन ईदर रैटिफाई द ट्रांसफर, रैटिफाई मतलब यस कह देना, हाँ कह देना कोई पुराने एक्ट को, या तो वो उसको क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं. सो ओवर हियर द ओनर हैज अ राइट टू इलेक्ट. इट इज नॉट द ट्रांसफरर. ट्रांसफरर इज समबडी हु इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. ठीक है, विद और विदाउट कंसेंट ही इज डूइंग समथिंग, ही इज ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर. तो ओनर हैज टू इलेक्ट बिटवीन टू ऑप्शंस. वो ये नहीं कह सकते कि मुझे पैसा भी चाहिए और मुझे मेरी प्रॉपर्टी भी चाहिए. दैट कैन नॉट हैपन. इक्विटेबल लॉ क्या कहता है? इक्विटी तो करो, या तो पैसा लो या तो प्रॉपर्टी लो, दोनों चीजें एक साथ नहीं मिलेगी. रिगार्डिंग द सेम सेक्शन 35 के अंदर वन ऑफ द लैंडमार्क केस इज कूपर वर्सेस कूपर, हैविंग द सिमिलर काइंड्स ऑफ फैक्ट्स. फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा सेक्शन 35 में कूपर वर्सेस कूपर इज द लैंडमार्क केस. मैंने ये जो वीडियो बनाई है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम पर्सपेक्टिव से बनाई है कि अगर आपके पास प्रीलिम में क्वेश्चन आ रहे कूपर वर्सेस कूपर किस केस से डील करता है तो यू विल रिमेंबर कि 35 से डील करता है. डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन किस सेक्शन के अंदर है तो 35 के अंदर आ रहा है. डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस नेमो दैट कॉट नॉन हैबिट किधर डील कर रहा है, तो बस सेक्शन नंबर याद रखने हैं. मेक श्योर कि आप ये कहीं रजिस्टर में ना लिखे, बेयर एक्ट में ही लिखें. मैं आपको बार बार रिपीट करूंगी बिकॉज आई हैव गिवन पेपर्स, आई नो हाउ थिंग्स वर्क. सो एज अ मेंटोर टू यू वट एवर आई एम सजेस्टिंग यू, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड डूइंग द सेम वे. डोंट यूज योर ब्रेन नाउ. अभी आपको एग्जाम निकालना ना, डोंट यूज योर ब्रेन, वो आप एग्जाम में यूज कर लेना. अभी के लिए जितना मैं बता रही हूँ उतना करो. फाइन. Moving ahead with the next doctrine, that is doctrine of contribution, which is given under section 37. As you know, section 37 deals with your apportionment. So यहाँ पर जो apportionment का मतलब क्या होता है, division होता है of obligation. तो अगर apportionment of obligation हो रहा है तो यहाँ पर हम doctrine of contribution भी उसी की बात करती है कि हर बहुत सारे अगर owners हैं और उनके ऊपर कोई एक ऑब्लिगेशन आई हुई है. मान लेते हैं ए ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की और उसमें कोई ऑब्लिगेशन थी. ऑब्लिगेशन मान लेते हैं उस पर कोई लोन था और लोन वो चुकता कर रहा था. जब उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की तो उसने उन लोग जो ओनर्स थे, मान लेते 6 ओनर्स थे, उनको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई. तो अब जब ट्रांसफ़र की गई तो 6 ओनर का राइट बनता है कि वो जो लोन है उसको चुकता करे अगर उनको इस चीज़ की नॉलेज है. तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन है, अपोर्शनमेंट ऑफ द
apportionment of the obligations. Fine. Now moving ahead with the very next important doctrine, that is doctrine of acquiescence. आप फिर से मैं बोलूँगी, ये सब डॉक्ट्रिन आपको टीपीए के बेराक में कहीं नहीं दिखेंगी. यू नीड टू राइट दीज, तो मेक श्योर यू राइट इट. As you know, section 41 talks about transfer by ostensible owner. So ostensible owner is a person who is not the actual owner of the property. He has not bought any property by his own money, but rather उसका सिर्फ नाम यूज़ हुआ है. आपने देखा ही होगा कि बहुत दफ़ा होता है कि आपके फादर प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं इन द नेम ऑफ योर मदर, इन द नेम ऑफ हिज मदर. तो इस केसेस में जहाँ पर वो अपनी वाइफ के नाम पे या अपनी बच्ची के नाम पे, अपने बेटे के नाम पे या अपनी मदर के नाम पे कोई प्रॉपर्टी परचेज करे, पर पैसा उन्होंने दिया है, तो ही इज़ द एक्चुअल ओनर. हूसोएवर पेज द मनी इज़ द एक्चुअल ओनर, राइट. नाम से कुछ नहीं होता है. जिसका नाम लिखा है वो कौन बन जाता है? ऑस्टेंसिबल ओनर. नाउ इफ दिस पर्सन्स वाइफ ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी, तो क्या ये वैलिड ट्रांसफर रहेगा? तो लॉ कहता है अंडर सेक्शन 41 कि एवरी ऑस्टेंसिबल ओनर हैज़ अ राइट to transfer the property and that transfer does not become voidable. ठीक है, mark this word that any transfer made by ostensible owner is not voidable. मतलब यहाँ पर ओनर के पास, जो एक्चुअल ओनर है, उनके पास ये राइट नहीं है कि इस ट्रांसफर को वॉइड डिक्लेयर कर दे. इट इज़ अ वैलिड ट्रांसफर. देखिए आपके पास क्वेश्चन आता है प्री में कि सेक्शन 41 के अंदर ट्रांसफर जो हो रहा है वो वॉइड है, वैलिड है, नॉट वॉइडेबल है, कि आपका क्या कहते हैं वॉइड, वैलिड, नॉट ट्रांसफर या नॉट वॉइडेबल या तो वैलिड. तो मेक श्योर यू रिमेंबर कि आपको वैलिड वहाँ नहीं मार्क करना है. वहाँ पर जो बेराट का टर्म है नॉट वॉइडेबल, आपको सिर्फ वही मार्क करना है. यही चीज़ आपके मेंस में पूछी जाती है एज इट इज यूपी PCSJ में 2018 में जब मेंस हुआ था, 2019 में मेंस हुआ था आई गेस, तो उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, is transfer by ostensible owner void? You need to remember it is not void or valid, it is not voidable. No right has been given to the your actual owner to make it void, क्योंकि उसकी कंसेंट के साथ ही, चाहे वो आपकी एक्सप्रेसली कंसेंट हो या इम्प्लाइडली कंसेंट हो, उसके साथ ही आपका कोई ट्रांसफ़र हुआ है. उसी बेसिस में आपका डॉक्ट्रिन ऑफ एक्विजिशंस कहता है कि जब भी एक पार्टी का फेलियर हो जाता है किसी भी राइट को असर्ट करने में या क्लेम करने में, जितने भी रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर, तो जबकि उसको इस चीज़ की नॉलेज है कि वो ऐसा कुछ कर रहा है, फिर भी वो राइट को अपना ले नहीं रहा है, दिस लीड्स टू हिज लॉस ऑफ राइट. तब वो अपने राइट को खो बैठता है. अब वो उस राइट को अपना क्या कहते हैं यूज़ नहीं कर सकता. तो रिमेंबर इट टॉक्स अबाउट सेक्शन 41 ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्विजिशंस. एक्विजिशंस मतलब मेरी जान मेरी नॉलेज में है, फिर भी मैं अपने राइट को यूज़ नहीं कर रहा. मतलब आप गलत काम कर रहे हो ना. बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट अब हमारा आ गया, जहाँ पर ये चीज़ करना इज़ रॉन्ग. और अगर गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि आपने किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी ली है, अपने नाम पे नहीं ली, पैसा आपने दिया था, तो आपकी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं कब्जा कर लेंगे, आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेंगे, वो आपको देंगे भी नहीं और पैसा भी नहीं मिलेगा. तो इसीलिए कभी भी बेनामी ट्रांजैक्शन के अंदर नहीं जाना है. अब क्वेश्चन आता होगा आपके माइंड में, अगर आपने टीपे नहीं पढ़ा है, आपको हिस्ट्री नहीं पता है कि कोई क्यों करेगा, किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी क्यों खरीदेगा. तो वो इसलिए खरीदा जाता है जस्ट टू इवेड टैक्सेस. जस्ट टू इवेड टैक्सेस अपना बचाने के लिए आप लेते हो, दूसरे के नाम पे प्रॉपर्टी ले लेते हो. इसी का ही लैंडमार्क केस इज राम कुमार कोंडू वर्सेस मैक्वीन. वैसे अगर मैं बात बताऊँ, राम कुमार लिखा है, वैसे तो अगर अभी होता तो राम कुमार होता, राम कुमार कोंडू वर्सेस मैक्वीन, बट क्योंकि ये ब्रिटिश एरा का समय है तो इसलिए राम कुमार कोंडू है. कोंडू तो सही है, उनका क्या नाम है, सेकंड नेम है, बट राम कुमार होता है. बट मेक श्योर आप राम कुमार ना लिखें, राम कुमार ही लिखें. राम कुमार कोंडू वर्सेस मैक्वीन इज द लैंडमार्क केस रिगार्डिंग ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर. Now moving ahead with the next doctrine, that is doctrine of feeding the grant by estoppel. This is dealt under section 43. सेक्शन 43 कह रहा है जब भी कोई पर्सन ट्रांसफ़र कर रहा है या प्रॉमिस कर रहा है टू ट्रांसफ़र अ प्रॉपर्टी when he knows that he has no interest in that property, no title to that property. मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं अपने फादर की प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रही हूँ.
आज मेरे पास मेरे फादर की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं है, आज उन्होंने ना ही मेरे नाम पे वो प्रॉपर्टी ली है, वो उन्हीं के नाम पे है, बट मैंने किसी से प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको ये प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करूँगी। जब समय आया कि चलिए भाई ट्रांसफ़र करिए प्रॉपर्टी, तब पता चला कि एक्चुअली तो मेरे पास तो टाइटल ही नहीं है, तो ट्रांसफ़र टाइटल तो मेरे फादर का है, राइट। इस सिचुएशन में क्या होगा, लॉ कहता है कि जब भी इन फ्यूचर, मान लेते हैं फ्यूचर में फादर ने मुझे मेरी अप वाली प्रॉपर्टी मुझे गिफ्ट कर दी, अब जैसे ही टाइटल मेरे पास आया, देन दिस डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल विल अप्लाई। जहाँ पर जिससे मैंने प्रॉमिस किया था, जिस ट्रांसफरी से मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ये प्रॉपर्टी दूंगी, एज अ सेल मैं करूँगी, तब वो मुझे अप्रोच कर सकते हैं कि अब आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, तो नाउ यू नीड टू फीड, अब अपने ग्रांट को, मतलब अपने प्रॉमिस को फुलफिल करो, क्योंकि अब आपके पास टाइटल आ चुका है। जब तक मैंने प्रॉपर्टी का वादा किया और मेरे फादर का टाइटल था, तब तक तो वो मुझे बाउंड नहीं कर सकते, बट जैसे ही टाइटल मेरे पास आया, आई विल बी बाउंड टू गिव दैट प्रॉपर्टी टू द पर्सन आई हैव प्रॉमिस टू गिव। दैट इज द मीनिंग ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल। You will be estopped. Law will stop you from doing opposite to what I have promised to do. Understood? Estop का मतलब यही होता है ना, रोकना किसी को। Now going ahead with section 48, which talks about Q prior est tempore portier est jure, which means he who is earlier in time is stronger in law. ये बात करता है प्रायोरिटी राइट्स की, जहाँ पर किसी पर्सन ने एक डिफरेंट समय में एक ही प्रॉपर्टी पे डिफरेंट मॉर्टगेजेस कर रखे हो। ठीक है, एक बार मैं जरा सेक्शन नंबर ही पढ़ लेती हूँ। वेयर अ पर्सन पर्पस टू क्रिएट बाय ट्रांसफर एट डिफरेंट टाइम्स राइट्स इन और ओवर द सेम प्रॉपर्टी एंड सच राइट्स कैन नॉट ऑल एग्जिस्ट और बी एक्सरसाइज। चलिए ठीक है, समझा देते हैं, समझ लेते हैं, ऐसे पढ़ने में कुछ नहीं होगा। सेक्शन 48 बात करता है प्रायोरिटी राइट्स की। अगर मैंने एक ही प्रॉपर्टी पे डिफरेंट राइट्स डिफरेंट समय में डिफरेंट लोगों को दे रखा है, तो जिसका पहला राइट है वो पहले यूज़ करेगा प्रॉपर्टी, जिसका सेकेंड राइट है वो सब्सिक्वेंटली यूज़ करेगा प्रॉपर्टी। तो राइट्स भी तो भाई जैसा जैसा टाइम पे बना है, मान लेते हैं 2019 पे मैंने किसी को एक राइट दिया इन माई प्रॉपर्टी, 2022 में दिया, तो 2029 वाले के पास पहला राइट है टू यूज़ दैट प्रॉपर्टी, फिर 2022 के ऊपर आएगा सब्जेक्ट टू दी राइट ऑफ प्रायर मॉर्टगेजी आप कह ले या प्रायर पर्सन कह ले। ठीक है, तो दिस इज व्हाट सेक्शन 48 टॉक्स अबाउट। क्यू प्रायर एस्ट टेम्पोरे प्रायर एस्ट जूरे, ही हु इज अर्लियर इन टाइम इज स्ट्रॉन्गर इन लॉ। लॉ उसको महत्व देता है जो कि पहले जिसका राइट बना हो। Now moving ahead with section 52 which talks about doctrine of lis pendens. इसका लैंडमार्क केस है बेलामी वर्सेस सबीन। सबको ही पता होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस कि भाई पेंडिंग लिटिगेशन में, पेंडिंग सूट के दौरान आपको कुछ भी न्यू चीज़ नहीं करनी, कोई भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। दैट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस सेक्शन 52। Now going ahead with section 61 which talks about doctrine of consolidation. मान लेते हैं ये बात करता है राइट टू रिडीम ऑफ डिफरेंट मॉर्टगेजेस की। अगर मान लेते हैं हमने एक ही पर्सन को एक ही प्रॉपर्टी में डिफरेंट समय में मॉर्टगेजेस किए, मान लेते मैंने एक प्रॉपर्टी थी जो कि 1 करोड़ की थी, मैंने उनसे 2019 में उनसे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी लेकर मैंने उनसे 10,000 रुपये लिए, फिर मैंने 2020 में उनसे 20,000 रुपये लिए, फिर मैंने 2023 में उनसे 10,000 रुपये और लिए, तो मैंने 3 बार लोन लिया है ऑन द सेम प्रॉपर्टी विद द सेम मॉर्टगेजी, 10,000, 20,000 और 10,000। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन कहता है कि एवरी पर्सन हैज अ राइट टू रिडीम, मॉर्टगेजर हैज अ राइट टू रिडीम ना। तो मॉर्टगेजर या तो रिडीम एक एक करके कर सकता है, या तो चाहे तो एक साथ भी पूरा अपना 40 लाख रुपए दे और अपना मॉर्टगेज को रिडीम कर ले। अंडरस्टूड? दैट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन। कंसोलिडेट करना, मिक्स कर देना। मैंने डिफरेंट टाइम में एक ही प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज किया, बट मैं चाहूँ तो एक साथ भी पूरी प्रॉपर्टी को रिडीम कर सकती हूँ। मुझे पैसे देना है, रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? पैसे दो, प्रॉपर्टी वापस लो। मैंने पैसे दिए, चाहे मैं एक एक करके दूँ या तो मैं एक साथ दूँ। तो सेक्शन 61 टॉक्स अबाउट द सेम। नाउ
सेक्शन 73 टॉक्स अबाउट सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि रिसेंटली बिहार जुडिशियल सर्विसेज में, आपके एमपी में, हर जगह अब सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी कहाँ दिया गया है, सेक्शन 73 में, कहाँ पर, ये पूछा जाता है. एंड दैट इज़ वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले इतना कोई खास ध्यान दिया नहीं जाता था. बहुत सिंपल है लॉ. सेक्शन 73 कहता है कि मान लेते हैं हमारी जॉइंट प्रॉपर्टी थी, मेरे और मेरे ब्रदर के साथ एक प्रॉपर्टी थी. मुझे लोन लेना था तो मैंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी, जो जॉइंट प्रॉपर्टी थी, उसको मैंने सिक्योरिटी रखा और मैंने लोन ले लिया. बाद में क्या किया, मेरे और मेरे ब्रदर के बीच में पार्टीशन हो गया. तो लॉ कहता है कि भाई जब पार्टीशन हुआ है तो मॉर्टगेजी का राइट क्या होगा. मॉर्टगेजी को तो जब आपने सिक्योरिटी दी थी तो पूरे प्रॉपर्टी की दी थी. तो अब वो जो पूरी प्रॉपर्टी की जो सिक्योरिटी थी वो शिफ्ट हो जाएगी टू द पार्टीशन्ड प्रॉपर्टी. अब जितना मेरा हिस्सा है, अब मॉर्टगेजी का राइट सिर्फ उस हिस्से पे, मेरे ब्रदर के हिस्से पे नहीं होगा. सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी अब चेंज हो गई अंडर लॉ. ये कहा जाता है भाई मैंने लोन लिया अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो मेरे ब्रदर को सफ़र करेगा. ब्रदर की प्रॉपर्टी को कुछ नहीं होगा, पूरी की पूरी सिक्योरिटी जो होगी वो बिल्कुल अब अनडिवाइडेड वाले पोर्शन में नहीं बल्कि डिवाइडेड पोर्शन में लगेगी. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. Now, the next doctrine is doctrine of subrogation given under section 92. Section 92 talks about subrogation. Subrogation मतलब stepping into the shoes of the person. यहाँ पर बात की जाती है कि who all can redeem the property. तो obviously the person, the mortgager himself can redeem. Even the subsequent mortgagee can also redeem the property. So यहाँ पर doctrine of subrogation सब्सिक्वेंट मॉर्टगेजी पे अप्लाई होता है. नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज योर सेक्शन 94 विच टॉक्स अबाउट रिडीम अप एंड फोरक्लोज डाउन. तो ये है क्या, इसमें है कि मान लेते हैं मॉर्टगेजीज एंड डिफरेंट सब्सिक्वेंट 3 मॉर्टगेजीज है. तो जो ये मिडिल वाला मॉर्टगेजी है ना, उसका राइट है कि जो प्रायर मॉर्टगेज हुआ है उसको तो वो रिडीम कर सकता है, और जो सब्सिक्वेंट मॉर्टगेज उसके बियॉन्ड हुआ है उसको वो फोरक्लोज करेगा. तो मैं अगर बताऊं तो चार्ट के फॉर्म में इसको समझा जाता है, जहां पर जो मिडिल वाला मॉर्टगेजी है, एक ही प्रॉपर्टी को 3 मॉर्टगेजी इसको हमने करा. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दिस सेकंड मॉर्टगेजी हैज अ राइट टू रिडीम द फर्स्ट मॉर्टगेज एंड टू फोरक्लोज द लास्ट मॉर्टगेज. अंडरस्टूड? दिस इज हाउ द मॉर्टगेज रिडीम अप एंड फोरक्लोज डाउन वर्क्स under section 94. So now going ahead with the last doctrine, that is doctrine of holding over given under section 160. 116 के अंदर जो ये doctrine of holding over दी गई है, इसका मतलब होता है whenever the tenancy agreement between the parties end and still the other party is paying the rent and the landlord is accepting the rent without any tenancy agreement between them. तो इसका है यहाँ पर होल्डिंग ओवर. फिर भी जो आपकी प्रॉपर्टी का जो रेंट, जो आपका टेनेंसी है वो चलती रहेगी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द अग्रीमेंट बट ऑन द बेसिस ऑफ द इम्प्लाइड या एक्सप्रेस एक्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड ऑफ एक्सेप्टिंग द रेंट. एंड डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग ओवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ज़्यादा प्री और मेंस में इस बारे में क्वेश्चन आते हैं. विद दिस आई विल एंड दिस सेशन फॉर टुडे. आई होप आपको क्लियर हुआ होगी एक एक सेक्शन, एक एक डॉक्ट्रिन मैंने अच्छे समझाने की कोशिश की. इन केस यू वांट मी टू गो अहेड विद द